ایک شخص کرکٹ کا بےتاج بادشاہ جس نے پچ پر اپنے ملک کا نام دنیا بھر میں روشن کیا، مگر جب وہ سیاست کی پچ پر اترا تو اپنے ہی ملک کی طاقتور اداروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کی۔ یہ نام پاکستان میں صرف ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک ایسی کہانی کا نام ہے جو کرکٹ کے اسٹیڈیم سے شروع ہو کر وزیر اعظم ہاؤس کی دیواروں تک پہنچی اور پھر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ختم ہوئی۔ مگر یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں جتنی دکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی جذبے کی کہانی ہے جو قوم کو جگا سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، جو ملک کو ہلا سکتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کا سفر کیسے ایک مثال بنا، اور پھر کیسے ایک معمہ بن گیا، اور آخر میں کیسے ایک سوال بن کر رہ گیا۔ 1971 میں جب پاکستان کرکٹ میں اپنی شناخت تلاش کر رہا تھا، تب لاہور کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے میدان میں قدم رکھا، عمران احمد خان نیازی۔ یہ نام اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کتنا اہم ثابت ہوگا۔ 1982 میں جب پاکستان کی ٹیم کی کپتانی عمران خان کے ہاتھ میں آئی تو یہ صرف کرکٹ کی کپتانی نہیں تھی، یہ ایک ایسی قیادت کی شروعات تھی جو بعد میں پورے ملک کی قسمت بدلنے کا خواب دیکھے گی۔ 1982 سے لے کر 1992 تک کا سفر، خاص طور پر 1992 کا ورلڈ کپ۔ 25 مارچ 1992 کو میلبرن کرکٹ گراؤنڈ پر جب عمران خان نے ٹرافی اٹھائی تو اس دن پاکستان نے صرف ورلڈ کپ نہیں جیتا تھا، اس دن ایک قوم کو یقین ہوا کہ وہ دنیا میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس سچی قیادت ہو۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد جب زیادہ تر کھلاڑی آرام کی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں، عمران خان نے ایک اور جنگ کا آغاز کیا۔ 1994 میں شوکت خانہ میموریل کینسر اسپتال قیام کیا گیا۔ یہ محض ایک اسپتال نہیں تھا، یہ ایک ایسے شخص کا خواب تھا جس نے اپنی ماں کو کینسر جیسے بے رحم بیماری میں کھو دیا تھا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ کوئی اور ماں، کوئی اور بیٹی، کوئی اور بہن اس بیماری کی وجہ سے صرف اس لیے نہ مرے کہ ان کے پاس علاج کی استطاعت نہیں۔ یہ وہ دور تھا جب لوگوں نے عمران خان میں صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کو دیکھا جو اپنے ملک اور اپنی قوم سے واقعی محبت کرتا ہے۔ 1996 میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ سال ایک نئی امید کا سال تھا۔ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ اس وقت پاکستان میں دو بڑی سیاسی جماعتیں حکومت میں باری باری آتی رہتی تھی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ دونوں جماعتوں کے دور میں عام آدمی کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی تھی۔ کرپشن، غربت، بے روزگاری، یہ مسائل ہر حکومت میں بڑھتی ہی گئی۔ عمران خان نے ایک نعرہ دیا، نیا پاکستان، ایک ایسا پاکستان جہاں عدل ہو، انصاف ہو، جہاں ہر شخص کو برابر مواقع ملے۔ مگر سیاست کا میدان کرکٹ کے میدان سے بہت مختلف تھا، یہاں کامیابی اتنی آسان نہیں تھی۔ 1997 اور 2002 کے انتخابات میں تحریک انصاف کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی اور وہ نشستیں حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ لوگوں نے کہا کہ عمران خان سیاست نہیں سمجھتے، وہ صرف ایک مثالی خواب دیکھ رہے ہیں جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اگلے 15 سال عمران خان کے صبر اور استقامت کا سخت امتحان تھے۔ 2008 کے انتخابات میں بھی کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان ایک اچھا انسان ہے مگر سیاستدان نہیں ہے، مگر عمران خان نے ہار نہیں مانی۔ پھر 2011 میں ایک اہم موڑ آیا، مینار پاکستان لاہور میں عمران خان کا جلسہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری قوم نے محسوس کیا کہ شاید عمران خان واقعی کچھ بدل سکتے ہیں۔ لاکھوں لوگ، خاص طور پر نوجوان جن کو پہلے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ عمران خان کے پیچھے جمع ہونے لگے۔ 2013 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ خیبر پختونخوا میں حکومت بنی۔ یہ پہلی بار تھا کہ عمران خان کو اپنے نظریات کو عملی جامہ پہنانے کا موقع ملا، مگر وفاقی سطح پر نواز شریف کی مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی۔ عمران خان نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ نتائج میں غیر قانونی مداخلت کی گئی ہے۔ 2014 میں انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا 127 دن تک۔ یہ دھرنا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک یادگار واقعہ بن گیا۔ مگر یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے، منتخب حکومت کے ہاتھ میں یا ان اداروں کے ہاتھ میں جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں فوج کا کردار ہمیشہ اہم رہا ہے۔ 4 مرتبہ ملک میں مارشل لا لگا، سیاسی حکومتوں کو کئی بار وقت سے پہلے گھر بھیجا گیا، اور یہ بات بھی عام تھی کہ سیاسی لیڈر اپنی حکومت بچانے یا حکومت بنانے کے لیے اداروں سے سمجھوتے کرتے ہیں۔ عمران خان کے دھرنے کے دوران کئی سیاسی تجزیہ کاروں نے کہا کہ عمران خان کو اداروں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ کہا گیا کہ نواز شریف اور فوج کے درمیان تعلقات خراب ہیں اور عمران خان کو اس صورتحال میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ مگر کیا واقعی ایسا تھا؟
2017 में नवाज शरीफ को पनामा लीक्स केस में नाअहल करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो मजीद वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकते। ये फैसला पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम वाक़या था। नवाज शरीफ के हामियों ने कहा कि ये एक साजिश है, जबकि इमरान खान और इसके हामियों ने इसे इंसाफ का क़याम करार दिया। 2018 में आम इंतखाबात हुए। इस बार तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जुमात बनकर उभरी। अगरचे वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिले, मगर इत्तेहादियों की मदद से इमरान खान ने वफाकी हुकूमत बना ली। 22 साल की जद्दोजहद के बाद इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म बने। ये लम्हा करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए खुशी का लम्हा था, खास तौर पर नौजवानों के लिए जिन्होंने इमरान खान में उम्मीद दी की थी। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इमरान खान ने वादा किया कि वो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, गुर्बत खत्म करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। मगर हुकूमत चलाना नारे लगाने से बहुत मुश्किल काम है। इमरान खान की हुकूमत को विरसे में एक बहुत कमजोर मईशत मिली। कर्जों का बोझ आसमान से बातें कर रहा था। IMF से कर्जा लेना पड़ा, जिसकी सख्त शराइत थी। महंगाई बढ़ती गई और रुपये की कदर कम होती गई। आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। हामियों ने सब्र की अपील की, कहा कि ये पिछली हुकूमतों की गलतियों का नतीजा है, वक्त दरकार है। मगर मुखालिफिन ने कहा कि इमरान खान ने बहुत बड़े वादे किए थे जो वो पूरे नहीं कर सके। इस दौरान इमरान खान ने कई अहम इकदाम भी किए। सेहत कार्ड स्कीम शुरू की, जिससे करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत मिली। एहसास प्रोग्राम के तहत गरीबों की मदद की। कोविड-19 के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली, जिसको आलमी सतह पर सराहा गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक अहम ट्विस्ट आता है। इमरान खान जिन इदारों की हिमायत से इक़्तिदार में आए थे, उनसे उनकी ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगे। 2021 में ISI की सरबराह की तब्दीली का मामला, ये पहला वाज़ेह इशारा था कि सब ठीक नहीं है। इमरान खान ने एक खास अफसर को रखना चाहा, मगर फौज ने दूसरा फैसला किया। ये छोटा सा वाक़या दर हकीकत बहुत बड़ा था। ये दिखाता था कि इख्तियारात की जंग शुरू हो चुकी है। मुखालिफ जमातों ने इसे मौका समझा। उन्होंने कहा कि इमरान खान और इनके साबिक हामियों में इख्तिलाफात है, मगर इमरान खान ने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि उन्हें इदारों की हिमायत थी। उन्होंने हमेशा ये दावा किया कि उनकी कामयाबी अवाम की मोहब्बत का नतीजा है। मार्च 2022 पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये महीना बहुत अहम है। अपोजिशन ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत कम लोगों ने सोचा था। तहरीक इंसाफ के अपने अरकान ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। इत्तेहादी जुमातें अलग हो गई। MQM, BAP और दीगर छोटी जुमातों ने हिमायत वापस ले ली। खुद तहरीक इंसाफ से कई अहम रहनुमा जहांगीर तरीन, अलीम खान और दीगर अहम रहनुमा खामोश हो गए या अलग हो गए। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि ये बैरूनी साजिश है, खास तौर पर अमेरिका की। उन्होंने एक खत का हवाला दिया जो बज़ाहिर साबित करता था कि अमेरिका पाकिस्तान में हुकूमत बदलना चाहता है। मगर इमरान खान के मुखालिफिन ने कहा कि ये महज एक बहाना है। हकीकत ये है कि इमरान खान नाकाम हो गए हैं। फिर आई 9 अप्रैल 2022 की रात। इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा खत्म हो गया। वोटिंग से एक रात पहले डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और कहा कि वोटिंग होनी चाहिए। 10 अप्रैल 2022 को वोटिंग हुई और इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हार गए। शहबाज शरीफ नए वज़ीर-ए-आज़म बने। आमतौर पर जब कोई लीडर इक़्तिदार से हटता है तो उसकी मकबूलियत भी कम हो जाती है, मगर इमरान खान के साथ उल्टा हुआ। इक़्तिदार से हटने के बाद इमरान खान ने पूरे मुल्क में जलसों का सिलसिला शुरू किया। उनका कहना था कि उनसे गैर मुनसिफाना तरीके से इक़्तिदार छीना गया है। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, हर शहर में लाखों लोग उनके जलसों में शिरकत करते। और फिर आया 9 मई 2023। ये तारीख पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक सियाहत दिन के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। इमरान खान को इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गया, मगर ये एहतजाज पर अमन नहीं रहा। कई जगहों पर तशद्दुद हुआ, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया। कोर कमांडर हाउस, GHQ के बाहर और रेडियो पाकिस्तान, इन जगहों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने तोड़ फोड़ की। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था कि फौजी मराकज को इस तरह निशाना बनाया गया था। इसके बाद इमरान खान पर केसेस का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। तो शाहाना केस, साइफर केस, निकाह केस और कई दीगर मुकदमात उन पर दर्ज किए गए। हर बार जब वो एक केस में जमानत हासिल करते, दूसरा केस सामने आ जाता। अगस्त 2023 में उन्हें तो शाहाना से मुतल्लिक मुकदमात के सिलसिले में सजा सुनाई गई और गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वो ज्यादातर वक्त जेल में ही रहे। उनके हामियों का कहना है कि
सब सियासी इंतकाम है, जबकि हुकूमत का कहना है कि ये कानून के मुताबिक कार्रवाई है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या इमरान खान वाकई एक तब्दीली ला सकते थे या वो महज एक ख्वाब था जो कभी पूरा नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते थे कि इमरान खान सियासत के खेल नहीं समझते थे, उन्होंने समझौते नहीं किए, लचक नहीं दिखाई और इसलिए वो नाकाम हो गए। कुछ लोग कहते कि इमरान खान को इदारों की हिमायत से लाया गया और जब इनकी अपनी सोच सामने आई तो इन्हें हटा दिया गया। कुछ कहते कि इमरान खान एक ईमानदार शख्स है जिन्होंने मुल्क के लिए काम करना चाहा मगर निजाम इन्हें कामयाब नहीं होने देना चाहता था। और कुछ कहते हैं कि इमरान खान ने जानबूझकर तसादुम की राह इख्तियार की और अब वो खुद इसका नतीजा भुगत रहे हैं। मगर एक बात ये है, इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में एक ऐसा बाब लिखा जो कभी बुलाया नहीं जा सकता, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने लाखों नौजवानों को सियासत में दिलचस्पी दिलाई। उन्होंने ये साबित किया कि आम आदमी भी सियासी तब्दीली की उम्मीद कर सकता है। इमरान खान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आज भी वो जेल में है, मगर उनकी सियासी मौजूदगी और असर कम नहीं हुआ। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में अगरचे तहरीक इंसाफ को पार्टी की हैसियत से हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी, मगर आजाद उम्मीदवार की शक्ल में उनके हामियों ने सबसे ज्यादा नशस्तें जीती। ये एक हैरान कुन नतीजा था जिसने सबको चौंका दिया। इससे ये साबित होता है कि इमरान खान की मकबूलियत मैस मीडिया की तशहीर या किसी की हिमायत का नतीजा नहीं थी। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, खास तौर पर नौजवान, वाकई इन पर यकीन रखते हैं। मगर सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। क्या इमरान खान दोबारा सियासत में फेल किरदार अदा कर पाएंगे? क्या उनकी जमात अपनी असली शक्ल में बहाल हो सकेगी या फिर पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर पुराने रास्ते पर चल पड़ेगी? इमरान खान की कहानी हमें कई अहम बातें सिखाती है। पहली बात ये कि जज्बा और इरादा बहुत अहम है, मगर सिर्फ यही काफी नहीं। हुकूमत चलाने के लिए सियासी दानाई, माशी समझ और हकीकत पसंदी भी जरूरी है। इमरान खान का विजन साफ था, मगर शायद उनके पास इसे अमल जाम पहनाने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी नहीं थी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में असल ताकत का ढांचा बहुत पेचीदा है। कोई भी मुंतखब हुकूमत अकेले नहीं चल सकती। उसे फौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और मजहबी तबकात समेत मुख्तलिफ ताकतों से तवाज़ुन बनाना पड़ता है। इमरान खान ने इस तवाज़ुन को बरकरार रखने में मुश्किल महसूस की और नतीजा हम सब के सामने है। तीसरी बात ये कि जब आवाम किसी लीडर पर भरोसा करती है तो वो भरोसा सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से कायम रहता है। इमरान खान ने जो वादे की थी वो बहुत बुलंद थे। जब वो मुकम्मल तौर पर पूरे ना हो सके तो मायूसी भी बढ़ी, मगर साथ ही उनकी ईमानदारी और नीयत पर लोगों का यकीन कायम रहा और यही वजह है कि आज भी उनके हामी उनके साथ है। इमरान खान की कहानी दरअसल पाकिस्तान की कहानी है। ये एक ऐसी मुल्क की कहानी है जो हमेशा तब्दीली की तलाश में रहा है, मगर हर बार वो तब्दीली मुकम्मल नहीं हो सकी। क्या पाकिस्तान वाकई जमहूरियत के रास्ते पर चल सकता है जहाँ अवाम का फैसला हतमी हो, या फिर यहाँ हमेशा पर्दे के पीछे की ताकतें फैसला करेंगी? क्या पाकिस्तान में ऐसा लीडर आ सकता है जो तमाम इदारों के साथ तवाज़ुन बनाती हुई अवाम की खिदमत कर सके, या फिर हर लीडर को भला आखिर इन्हीं रास्तों पर चलना पड़ेगा जिन पर पिछले लीडर चले? ये सवालात आसान नहीं है और इनकी जवाबात भी सादा नहीं है। चाहे इमरान खान की सियासी जिंदगी अब किसी भी सूरत इख्तियार करे, एक बात है, उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में एक नया मायार कायम किया। उन्होंने नौजवानों को सियासत में शामिल किया जिन्हें पहले लगता था कि सियासत गंदी चीज है और इससे दूर रहना चाहिए। उन्होंने ये साबित किया कि शफाफ और जवाबदेह हुकूमत का तस्वुर महज ख्याली नहीं बल्कि मुमकिन है। अगरचे उनकी हुकूमत ने तमाम मसाइल हल नहीं किए, मगर कम से कम उन्होंने कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाई कि तब्दीली मुमकिन है, चाहे वो तब्दीली मुकम्मल ना हो, चाहे उसे रोकने की कोशिश की जाए, मगर उम्मीद का दिया बुझा नहीं जा सकता। शायद इमरान खान वो तब्दीली ना ला सके जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था, मगर उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में वो ख्वाब जरूर पैदा कर दिया। और ख्वाब कभी नहीं मरते, वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं जब तक कि एक दिन वो हकीकत बन जाए। इमरान खान की कहानी में एक सियासतदान की कहानी नहीं, ये एक कौम की जदोजहद की कहानी है। ये उन लाखों पाकिस्तानियों की कहानी जो एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते थे, जो इंसाफ चाहते थे, जो एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहाँ हर शख्स के लिए यकसा मौके हो। आज इमरान खान जेल में है, उनकी जमात पर पाबंदियां है, उनके कारकुन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मगर उनका पैगाम, उनकी उम्मीद और उनका ख्वाब अब भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। तारीख गवाह की जो तहरीक अवाम के दिलों में जगह बना लेती है, उन्हें कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, चाहे वक्त कितना ही लगे, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल हो। मगर सच
کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا. یہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی, یہ ایک نیا آغاز ہے. آگے کیا ہوگا وہ وقت بتائے گا, مگر ایک بات یہ ہے, پاکستان کی سیاست میں عمران خان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.